second part of the editorial, that is Quad. There was this one article which came about Quad. It was very important, and Quad has been in news recently because even in like ASEAN summit that happened recently, China actually talked ill about Quad, and China is not happy with the Quad. And editorial talk about the same thing. China is really not happy with the Quad and talks about the reason, and it talks about how whatever recent development is happening regarding the Quad, China is actually trying to take step against it. Now, like if you want to understand Quad, I've already, like in today's current affairs, I've already talked in detail what Quad is. But for your sake, Quad is actually the multilateral alliance of the four countries, that is India. The number one is India, other one is Japan, third one is USA, and the fourth one is Australia. So these four countries collectively are called as Quad countries. Okay, USA, Japan, just remember this, याद रखना आपके लिए बेहतर होगा. These are four countries which actually for the four members of the Quad, and they have come together to apparent reason is for the human right issue, to assist in human right, disaster management, and then to maintain peace and tranquility in the Indo-Pacific region. ये जो आपका पूरा Indo-Pacific region है, इसमें peace और tranquility बनाने के लिए माना रखा गया है, और यहाँ से लेके यहाँ तक usually Indo-Pacific region होता है जिसकी boundaries vary करती रहती है, but this is considered your Indo-Pacific region. Now let's move ahead. कि what article has to talk about it. Now article says कि article talks about कि in the Indo-Pacific Indo-Pacific, South Asia, China, conflict has become very visible. कि China is not happy with the presence of any other country in this region. कि यहाँ पे अगर इस area में, like this is China, or this it consider its hegemony, or whenever any other countries comes in this region, China is really not happy about it. So article talks about this. Next, it says कि there is recently there is being heat is seen in between China and even Bangladesh, and the reason was Bangladesh's interest in joining Quad. Bangladesh showed the interest in joining Quad, and China was not really happy about it, and China publicly showed its disapproval. China disapproved of the Quad, and China also disapproved of Bangladesh joining the Quad. So China is not happy with both the fact कि ना तो Quad रहे, Quad ना तो Quad से खुश है, और ना बांग्लादेश क्वाड को ज्वाइन कर रहा है, चाइना उससे खुश है. सो चाइना के लिए दोनों ही चीज़ें it doesn't like it. Now let's move ahead. Now what has happened is, like, article then gives an example. Article is like, it's not a baseless allegation. Article gives an example of a Chinese ambassador to Bangladesh, Mr. Li Ziming, warned the Dhaka that there will be a substantial damage in bilateral ties if Bangladesh joins the Quad. मतलब ये तो सरेआम धमकी हो गई कि अगर आप Quad को ज्वाइन करेंगे तो देखिए हमारे रिश्ते खराब हो जाएंगे. It's a direct actually warning or threat, it can be considered. It is like directly saying Bangladesh, and any smart nation can understand this. Now, what is the said reason? The reason is that the Quad is gaining major support, and Beijing is afraid of Quad's future role, because the Quad is like Quad is becoming popular every day, in terms of, because it has like four major power. US is there, and Australia is there. Then India is again there, and along with it is Japan. And some way China found itself somewhere clubbed in between. And China does not like, because all of the four countries shows interest in the Indo-Pacific region. And Indo-Pacific region China consider as like close to its hegemony, because ये South China Sea के आसपास आ जाता है. China is not happy कि अब ये हमारे पानी में आ गए. Or in fact, many countries have declared the Indo-Pacific strategy. So like article is talking about this कि Beijing is actually not just challenging Dhaka. Beijing actually Quad को धमकी दे रहा है. जैसे वो नहीं था वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे, ऐसा बहुत होता था, एक कंट्री दूसरे के कंधे पे रख के गोलियां चलाती थी, कहती किसी और को थी पर धमकी किसी और को जाती थी. और इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल ये है कि जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुई और उसके बाद जब न्यूक्लियर जो वेपन था, जब वो जापान के ऊपर गिराया गया था, सो लाइक एंड यूएस डिड इट.
but then Russia consider it as actually threat to itself. Russia said कि ये जापान पे नहीं गिराया गया, ये हमारी ईगो, मतलब हमारे एक्चुअली ये हमें धमकी दी गई है, वार्निंग. सिमिलरली इट इज़ बीइंग सेड कि बीजिंग ने जो धमकी ढाका को दी है वो ढाका को नहीं दी है, वो एक्चुअली क्वाड को दी है और उन सभी नेशन को दी है जो कि क्वाड को ज्वाइन करना चाहते हैं. सो इट इज़ लाइक अ वेरी स्ट्रॉन्ग जियो पोलिटिकल गेम गोइंग ऑन इन देयर. नाउ लेट्स मूव अहेड. Now, Beijing is showing its public disapproval of a platform that has gained rapid traction. Like, Beijing is not happy. और वो publicly अब अपने dissatisfaction को show कर रहा है कि it's not happy. But Beijing has also failed to prevent these countries to actually join the Quad or coming up with the Indo-Pacific strategies. As I said, this is where China want to maintain its hegemony. China consider कि ये तो इसकी hegemony है और यहाँ पे कोई और आएगा तो चाइना की जो पावर है उसको थ्रेट आ जाएंगे. चाइना डज नॉट लाइक दिस. तो उस इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी, लाइक इफ एनी कंट्री कम्स विद, चाइना कंसिडर्स अ थ्रेट टू इटसेल्फ. बट व्हाट हैज हैपेंड इज यूएस हैज इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी, इवन मैनी अदर कंट्री हैज, इवन इनफैक्ट इंडिया ऑल्सो हैज इट, इवन वी हैव इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी. एंड बांग्लादेश इज ऑल्सो प्लानिंग, स्मॉल नेशन अकॉर्डिंग टू चाइना. बांग्लादेश तो बहुत छोटा है ना. इवन a small nation like Bangladesh is actually come out with its own Indo-Pacific strategy, and US is not happy with this. Like this entire thing, US is not happy with this. Now, as the Quad gains more momentum, अब जो आर्टिकल एक सिमेट्री बनाता है कि क्वाड बन रहा है और इंडो पैसिफिक के पानी में ना एक उथल पुथल शुरू हो गई है. अ चर्निंग हैज स्टार्टेड टेकिंग प्लेस इन इंडो पैसिफिक रीजन. And it's like कि a geopolitical game दिखने लगा है. China is not happy anybody coming in there, but the countries are expanding their frontier. Every country want to maintain their presence, जो कि वहाँ पे उनका literal state है वहाँ पे. China is not happy with their increasing maritime presence. So this is what the article is talking about. And with this article concludes, this is going to be new Indo-Pacific strategy and India should be worried about. Now, one thing to be taken care in here is Quad बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है. आप इसे पीटी के पर्सपेक्टिव से प्रिपेयर करें. एंड अगर पीटी के पर्सपेक्टिव से प्रिपेयर करना है, देन ऑलरेडी इन टुडेज करंट अफेयर्स मैंने आई हैव मेड अ डिटेल नोट्स अबाउट कोविड, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं. मेंस के पर्सपेक्टिव से देखना है तो इस तरीके के आर्टिकल्स को देखते रहें, तो आपको वहाँ से मिल जाएगा. तो फ्रॉम पीटी एंड मेंस पर्सपेक्टिव इस प्लेटफॉर्म पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी. नाउ लेट्स मूव अहेड. नाउ नेक्स्ट इज दैट आर्टिकल टॉक्स अबाउट मेंटल हेल्थ इशू. अब हम बात करेंगे, एक नया आर्टिकल है और इट इज़ दिस आर्टिकल जस्ट अब वो कार्टून नहीं आता उसके ऊपर जो आर्टिकल आता है. सो दिस इज वी हैव टॉक्ड अबाउट चाइना का बेलिजरेंस. वी हैव सीन दिस वाज बेलिजरेंस वाला आर्टिकल जहाँ पे हमने क्वाड डिस्कस किया था, एंड दिस आर्टिकल इज अपॉन मेंटल हेल्थ. तो अब हम इस आर्टिकल को डिस्कस करने वाले हैं. सो द आर्टिकल टॉक्स अबाउट मेंटल हेल्थ एंड हाउ टू ओवरकम इट. पहले तो मेंटल हेल्थ के बारे में बोलेगा, देन सजेशंस देगा कि हाउ यू कैन ओवरकम दिस, एंड देन इंडिकेट कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम इन पर्सन, मतलब व्हाट आर द इंडिकेटर्स कि आपको कौन से सिम्टम्स दिखते हैं कि मतलब यू कैन आइडेंटिफाई द पर्सन हैज़ अ मेंटल हेल्थ, एंड देन गिव्स अ ब्रीफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस. यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा एम्फसाइज किया गया है. अगर मेंटल हेल्थ के ऊपर आपको डेटा चाहिए तो दिस आर्टिकल इज़ वेरी यूजफुल टू यू, इनफैक्ट टू यूजफुल टू यू, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा डेटा है. इट इज़ दिस आर्टिकल इज़ ओवरलोडेड विद डेटा एंड वी आर गोना यूज दिस, एंड आई होप इट इज़ लाइक यूजफुल टू यू. नाउ लेट्स मूव अहेड, डिस्कस व्हाई वी नीड अ रोड मैप, एंड इट ऑल्सो टॉक्ड अबाउट कि हमें मेंटल हेल्थ अवेयरनेस पे क्यों काम करने की ज़रूरत है. सो दिस वॉज द बैकग्राउंड. नाउ वी आर डन विद बैकग्राउंड. नाउ लेट्स मूव अहेड with like one by one, taking each topic step one by one. Now it article says कि why mental health is important. Mental health is very important. जब आपका दिमाग messed up होता है ना इस तरीके से जो दिख रहा है, like it's very like it's so important. आपकी efficiency बहुत कम हो जाती है, but अब तक आपको सिर्फ ऐसा लगता था कि it's your efficiency that is being impacted. Now the statistics says that कि the mental health illness reduces the life expectancy by 10 to 25 year. 10 से 25 साल आप कम जीते हैं. वो बचपन में कहावत नहीं सुनी थी, चिंता चिता होती है. चिंता चिता actually that was not talking about चिंता वाला tension. They were talking about mental health. This mental health can actually take you close to so many things, and this it was like living a life worryless. I'm not exactly saying very less, but at least a peaceful life is a very important thing.
Then article talked about how 72% of the member state have a standalone policy for the mental health. मतलब इतना पॉलिसी भी इतना इन्वेस्ट नहीं किया गया है. टेकिंग एग्जांपल ऑफ इंडिया इटसेल्फ, अगर इंडिया का एग्जांपल लिया जाए तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो हमारी है, नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी आपकी 2014 में आई थी. एटलीस्ट 2014 में हमने सोचा तो सही. एंड अ राइट बेस्ड मेंटल हेल्थ केयर अप्रोच हमारा 2017 में आया है. दिस एक्ट इज़ इंपॉर्टेंट, इसके डिटेल में ज़रूर जाइएगा. इनफैक्ट नहीं तो किसी दिन मैं ही इस पर डिटेल में बना दूंगी. सो इट इज़ एन इंपॉर्टेंट एक्ट जिसमें लाइक सम काइंड ऑफ थेरेपीज आर रिस्ट्रिक्टेड. नाउ इट इज़ एक राइट बेस्ड अप्रोच है. सुसाइड को भी डीक्रिमिनलाइज किया जा चुका है. सो दीज आर लाइक सर्टेन चेंजेस जो कि मेंटल हेल्थ केयर एक्ट में लाए गए हैं, बहुत सिग्निफिकेंट हैं, जो कि 1987 के एक्ट को रिप्लेस करता है. एंड एक्चुअली सुसाइड वाला प्रोविजन बहुत इंपॉर्टेंट था. सो फार सुसाइड बिकॉज हम विक्टोरियन एरा उससे ग्रो करते थे, तो वी थॉट इट इज़ अ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, तो हम लोगों को जेल में डाल देते थे. व्हाट वी डिडंट रियलाइज, सुसाइड इज एक्चुअली सिम्टम्स ऑफ मेंटल इलनेस. अ पर्सन इज एक्चुअली नीड ऑफ हेल्प. यू आर नॉट सपोज टू पुट हिम इन जेल. उसको हेल्प प्रोवाइड करो. इट इज़ विद दिस थिंकिंग जो रीसेंट एक्ट है वो सुसाइड को सबसे पहले डिक्रिमिनलाइज करता है. इनफैक्ट नाउ द प्रेजेंट थिंकिंग टॉक्ड अबाउट कि हाउ यू नो the person who is going through who is thinking of suicide or having suicidal thought should be given some kind of help. तो इस समय इस तरीके की थिंकिंग अब चल रही है. Now let's move ahead. अब थोड़ा डेटा की बात करते हैं. दिस आर्टिकल इज ओवरलोडेड विद डेटा. डेटा बहुत है इसमें. सबसे पहले मेंटल हेल्थ स्प्रेडिंग अक्रॉस द वर्ल्ड. सबसे पहले पूरी दुनिया में मेंटल हेल्थ पे सिर्फ 2% ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. आप जितना खर्चा सब पे करते हो ना, आपकी दुनिया मतलब आपकी तो दुनिया खैर मेंटल हेल्थ से चलती है, उस पर सिर्फ 2% ऑफ द वर्ल्ड का खर्चा, दुनिया का खर्चा होता है. लो इनकम कंट्रीज में तो सिर्फ 0.5% होता है. लो मिडिल इनकम कंट्रीज में थोड़ा बढ़ जाता है 1.9, थोड़ी इनके पास पैसे आने लगे ना. और अपर मिडिल इनकम कंट्रीज में 2.4% होता है और हाई इनकम कंट्रीज में 5.1% होता है. आप इस तरीके से खुद को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. राइट दिस, ठीक है. ओवरऑल देखा जाए तो 2% एक्सपेंडिचर होता है. जो पुअर कंट्रीज हैं वो सिर्फ 0.5% करती है. ठीक है. इससे जो ऊपर हैं वो आपकी 2.4% करती हैं, सॉरी 1.9% करती हैं. इसके जो ऊपर आती हैं वो आपकी 2.4 करती हैं और जो इसके ऊपर आती हैं वो 5.1%. प्लीज़ इस तरीके के डायग्राम्स को बना के अपने पास रखें. दीज आर वेरी गुड डायग्राम. अब देखिए इतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन, ये बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ्स थे जिसको मैंने इतने शॉर्ट में समराइज कर दिया है. एक तो टेबल की फॉर्म में आ गए, दूसरा डायग्राम की फॉर्म में आ गए. दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू डू. इतनी सारी इन्फॉर्मेशन को इतने से क्रक्स में ला के और फिर उसको एग्जाम में प्रेजेंट करना है. तो देखिए एक डायरेक्ट कोरिलेशन है. यू कैन सी अ कोरिलेशन, राइट ना. एक कोरिलेशन आपको दिखता है किस किस के बीच में इन टर्म्स ऑफ मेंटल हेल्थ पे जो एक्सपेंडिचर होता है और दूसरा जो इनकम लेवल होता है. ऑब्वियसली लो इनकम कंट्रीज बहुत कम कर रही है और जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है. सो दिस इज व्हाट यू कैन सी. बट ओवरऑल वर्ल्ड में कितना है? 2%. ये डेटा आप याद रखें. ग्लोबली 2%. रिपीट करें मेरे साथ. ग्लोबली 2%, 0.5, 1.9, 2.4, 5.1. देखिए कैसे लाइक यू कैन रिमेंबर दिस. 2%, 0.5, 1.9, 2.4, 5.1. आई होप ये डेटा अभी आपको याद हो गया है इस हायरार्की के साथ. नाउ लेट्स मूव अहेड. ना अदर डेटा एंड फिगर इज लाइक, अब थोड़ा इंडिया के पर्सपेक्टिव से आ जाते हैं. वो थोड़ा आपने ग्लोबल डेटा देखा ना. गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन जो हॉस्पिटल डीलिंग विद मेंटल हेल्थ जो है हमारी कंट्री में 1.3 है. मतलब हम कुछ यहाँ आते हैं, राइट ना. लोअर मिडिल इनकम कंट्री से भी थोड़ा कम खर्चा कर रहे हैं. हमारी कंट्री में इतनी इंपॉर्टेंस है. एंड इन डेवलप कंट्रीज एटलीस्ट 3 to 15% है. लाइक इट इज बीइंग सीन, वी सॉ कि एटलीस्ट इट वाज क्रॉसिंग द 5% मार्क. इन इंडिया मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल पर लैक पॉपुलेशन हमारे सिर्फ 0.01 है. कैन यू सी, 1 लाख में 0.01. 1 लाख के ऊपर एक भी मेंटल हेल्थ हमारे पास हॉस्पिटल नहीं है. दिस इज द कंडीशन. मेंटल हेल्थ इज सच अ निग्लेक्टेड एरिया इन आवर कंट्री. आफ्टर विच
आर्टिकल टॉक्ड अबाउट कि बिकॉज ऑफ विच इंडिया की रैंकिंग पे भी रिफ्लेक्ट होता है कि 2016 की वेरियस रैंकिंग ली गई है यहाँ पे. एन आर्टिकल टॉक्ड अबाउट दैट इंडिया रैंक 114, दैट इज जस्ट 0.03 यूनिट्स पर 1 लाख पॉपुलेशन. 1 लाख में सिर्फ इतना 0.03 हमारे पास यूनिट्स है मेंटल हेल्थ फैसिलिटीज के पर्सपेक्टिव में. इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेंटल हेल्थ आउट पेशेंट फैसिलिटीज 99 पोजिशन है. हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट फैसिलिटीज हमारी 64th पोजीशन है. WHO मेंबर कंट्रीज में हमारी 58 पोजीशन है. एंड 107 इन टर्म्स ऑफ नर्सेज, सोशल वर्कर, साइकोलॉजिस्ट वगैरह. ये अब आप इनमें से कोई एक याद कर लो. आप चाहे 58 वाला याद कर लो जो WHO का है, इट्स अ वेरी क्रेडिबल रैंकिंग, या फिर आप 99th वाला पोजीशन याद कर सकते हो. एनी वन यू वांट टू रिमेंबर. 99 इजी रिमेंबर है, 100 के आसपास है. तो लाइक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेंटल हेल्थ आउट पेशेंट में 99 रैंकिंग है, या बोलो कि WHO मेंबर्स में हम 58 रैंकिंग पे आते हैं. 60 के आसपास है, 58 रैंकिंग है. तो ये डेटा आप याद रखें. पिछला वाला डेटा क्या था? 0.5, 1.9, 2.4, 5% समथिंग एंड 2% ग्लोबल एवरेज. डेटा याद हो गया, राइट? ये बहुत बड़े पैराग्राफ थे बट आपने ऐसे समराइज कर लिया. अब यहाँ पे 58 WHO और 99 था आपका आउट पेशेंट फैसिलिटीज में. आप डेटा याद रखें, लाइक मेमोराइज करो, साथ में याद करो, सो दैट आपका काम कम हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है, काम कम हो रहा है. नाउ लेट्स मूव अहेड. नाउ आर्टिकल टॉक्स अबाउट व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ मेंटल हेल्थ. इससे होता क्या है? दिस रिजल्ट इन एंग्जाइटी डिसऑर्डर, साइकोटिक डिसऑर्डर, मूड डिसऑर्डर. बहुत लाइक सैडनेस होती है, एंग्जाइटी होती है, and then psychotic other problem, bipolar disorders हो जाते हैं. mood disorder is also like bipolar disorder. At one moment you are sad and other moment you are very validated. वो कहते हैं ethics में नहीं होता. ethics like भागवत गीता, आप जब whenever you gonna talk about like mental health, do quote भागवत गीता. It talks about equanimity. Equanimity is a state when person does not differentiate or is not impacted by grief एंड ऑपुलेंस, या फिर सो मच ऑफ लाइक अगर बहुत सारी अगर वेल्थ उसके पास आ जाती है, हैप्पीनेस. ही इज लाइक इज कंपेयर्ड विद अ दिया जो कि आंधी से हिलता नहीं है, राइट? सो लाइक दिस इज द स्टेट ऑफ माइंड हम सब अचीव करना चाहते हैं बट ऐसा होता नहीं है. एट वन स्टेट वी आर हैप्पी, एट अदर स्टेट वी आर सैड. So quote, like you can quote in ethics, you can make an example in there how you know mental health is going to be the next pandemic. WHO itself has said कि once COVID will pass, mental health is going to be the next pandemic. And in that pandemic it is very important कि equanimity, like आप इस तरीके की thinking को वापस लेकर आओ, मेंटल हेल्थ पे काम करो. सो दीज आर वो लाइक सिम्टम्स कि डिसऑर्डर हैं, साइकोटिक डिसऑर्डर है, मूड डिसऑर्डर है, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होते हैं, ईटिंग डिसऑर्डर होते हैं, एपेटाइट इम्पैक्ट हो जाता है. तो दिस टॉक अबाउट कि आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपको मेंटल हेल्थ इशू है या नहीं है. तो इसमें से देखिए, आर यू सफरिंग फ्रॉम एंग्जाइटी, आर यू हैविंग एपेटाइट इशूज. तो बाय दीज सर्टेन सिम्टम्स यू कैन आइडेंटिफाई. And our society does not easily accept that mental health has become, has impacting us. In fact, majority of people suffer from it, but they do not recognize. And the two prominent reason is either the stigma attached to it or the ignorance. Two reasons. तो पहली बात तो सिम्टम्स को देख के आइडेंटिफाई करना कि हाँ अब मेंटल हेल्थ है. दूसरा, स्टिग्मा की वजह से लोग बाहर नहीं आ पाते. एंड इट हैज़ ऑल्सो बिकम मेजर कॉज ऑफ सुसाइड. टू सी हमारे पास जो डॉक्टर्स हैं वो तो 0.01 के अब हैं पर लाख पॉपुलेशन, पर लाख पॉपुलेशन सुसाइड हमारे 10.6% है, राइट? सी द डिस्पैरिटी, ऑलमोस्ट लाइक गैप इज लाइक 100 टाइम्स और मोर देन दैट. इतना डिस्पैरिटी है कि इतने सुसाइड होते हैं और मेंटल हेल्थ फैसिलिटीज इतनी कम अवेलेबल हैं. इंडिया में 16.3 पर 1 लाख इतने हमारे सुसाइड हो जाते हैं, 16.3, राइट? लाइक इन 2016. Now suicide rate, or it is like, and because one of the major reason is processing of emotion, which is much lesser in males, so suicide rate is higher among male than female. ये आप अपनी जो डरखाइम है ना, डरखाइम which is a major prominent sociology thinker, वहाँ पे आप कोड करें इसको, कोड दिस एग्जाम्पल, राइट ना? इन सोशोलॉजी डू राइट प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कि कोविड की वजह से सुसाइड हो रहे हैं. आप उसे किस में एक्सप्लेन करोगे? क्या वो इकोनॉमिक सुसाइड है या वो आपके फैटलिस्टिक सुसाइड है? कौन सी कैटेगरी के सुसाइड में आते हैं, राइट? सो लाइक गिव दिस अपने सोशोलॉजी के उसमें डालो इसे, सोशोलॉजी
ये आपका जीएस पेपर 2 में भी आता है और जीएस पेपर 1 में भी आएगा और 4th में भी आएगा, एथिक्स में भी. यूज एनी एग्जाम्पल एज क्रिएटिवली एज यू कैन. नाउ in fact the report, so like this is how you're going to use in an exam. लॉकडाउन के टाइम पे और बढ़ चुके हैं और आप उसे चाहे इकोनॉमिक सुसाइड के उसमें डाल के यू कैन राइट यू नो हाउ इकोनॉमिक सुसाइड आर राइजिंग इन द लॉकडाउन. Also, there is a report that is being published by Lancet. They said 1 in 7 people in India have mental disorder. This is the state. 1 out of 7. Every 1 out of 7. Or maybe this is underestimated data. But really, is that 1 out of 7 people is seeking help or is talking about it? So this shows the level of ignorance जो कि इस country में है. Now, proportional contribution of mental disorder has doubled और अब बढ़ चुका है. And one of the reason is social change. लाइक आप जितना हो सके ना, लाइक आई विल प्रिपेयर माई सेल्फ, रीजन आइडेंटिफाई करो क्या है. सोशल चेंज है, लिखो यहाँ पे. सोशल चेंज है, राइजिंग इंडिविजुअलिज्म है, राइट ना. सेंस ऑफ कंपटीशन है, पहले कम्युनिटी फीलिंग होती थी, सेंस ऑफ कंपटीशन है. इकोनॉमिक कंडीशंस आने लगी हैं. राइट एग्जाम्पल सो दैट यू आर एबल टू राइट दैट इन एग्जाम एज वेल. Now article not just does not limit itself कि disorder क्या है, क्या reason है. Article also talked about कि अब करना क्या है. मतलब आपने reason तो identify कर लिया, आप करोगे क्या. Article says reduce the gap in the treatment for the mental disorder. Increase the number of personnel in the mental health sector. पहले मतलब gap कम करो, personal पे काम करो. जो discriminatory attitude है ना, जो stigma exist कर रहा है, उस पे काम करो so that people can come out. Mental illness इसका मतलब पागल नहीं है. मतलब दैट इज समथिंग. अगर आपका पेट खराब हो गया, इतनी आसानी से बात कर सकते हो, तो दिमाग में थोड़ी प्रॉब्लम है, इसको भी थोड़ी आसानी से बात कर सकते हैं ना. व्हाई देयर इज सो मच स्टिग्मा अबाउट इट? बिकॉज पीपल आर नॉट रेडी टू टॉक अबाउट इट. even people like us, when he suffer, they even can't talk about it. So let's move ahead. To be openly accepted, when people like me have suffered mental health in past, and it takes to courage to talk about it. Next is, let's divide the article also talked about कि bring an integrated approach for entire thing. कि जो आपके existing health infrastructure है उसमें integrate करो mental health को भी in terms of detection, treating and managing patient need, तीनों level पे. क्योंकि हम detect ही time पे नहीं कर रहे, right ना. उसी के बाद तो treat करेंगे, उसी के बाद तो manage करेंगे, तो detection level पे भी काम करने की ज़रूरत है. Then increase the counseling facilities, because medicine is just like a patch up thing. Counseling is actually a long term solution, especially rural areas. और आपको example कहाँ दिख रहे हैं? Farmer suicides. And you think suicide is just an urban phenomenon. It is not true. Farmers suffer from suicide a lot. So it is seen. Especially take the support of female through the provision of women doctors आप use कर सकते हैं. They're very empathetic, and empathy is a very important provision जो कि इसके लिए चाहिए होती है. Then use telemedicine. Especially it is lockdown has proved one point कि digitization is going to be the new tool to address the existing problems, and that's what telemedicine can be solution. तो आप telephone based helpline number निकालो या help वगैरह निकालो. In fact many state government has come up with solution like this. Delhi government में है, बाकी central level पे भी काम चल ही रहा है. Next is the community's feeling. As I talked about, one of the basic reason was rising individualism and competition, right ना. अब हमारे दिमाग में ये नहीं है कि हम कोई भी चीज़ ना कोलैबोरेशन से भी अटेंड कर सकते हैं. अब हमें क्या लगता है हर चीज़ कंपटीशन से करेंगे, ऐसा नहीं होता. डू communities bring back the feeling of communities. In fact, enroll the communities so that you can find the solution. Community based program लेकर आओ, school based program लेकर आओ on the mental health. Educate at the children at the mental health, because you see, not just farmers, student suicide is a very prominent phenomenon. So आइडेंटिफाई द रेड एरियाज को आइडेंटिफाई करो और वहाँ पे टारगेट करो. दिस इज द बेस्ट अप्रोच अ गवर्नमेंट कैन कम अप विद. सो दिस इज व्हाट द आर्टिकल टॉक्ड अबाउट, एंड विद दिस वी आर डन विद टुडेज करंट अफेयर्स. Thank you for staying connected to us. So now stay at home, stay healthy, stay safe and stay connected to AQBIS, and do as much as possible to maintain your mental health right now. I can imagine staying in lockdown could have been bit overwhelming,
but stay connected, and by being stay connected you can reduce it down to a greater level. Now this session is brought to you by AQ Bias. Stay connected to AQ Bias.